Good morning, students. Yesterday we have started with a new chapter, that is company accounts, issue of shares. Okay, in this chapter we have learned what do you mean by share and share capital. Share is what? It is a small part of the share capital. Okay, now this share capital is divided into small part and issued to the public, that is known as shares. Okay, now we have learned the different types of shares. There are two types of shares according to the Companies Act 9 2013, that is your preference shares and equity shares. Equity shares are the known as owners capital. Okay, owners shares. Here there is no preference over the dividend payment and preference for the payment at the time of winding up of the company, whereas the second one is preference share. Here the preference shareholders are given priority for the dividend payment and also given repayment of capital at the time of winding up of the company. In preference shares there are many types of preference shares, such as cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, transferable preference shares, non-transferable preference shares, redeemable preference shares, non-redeemable preference shares, etc. Okay, there are many types of preference shares. Then we have seen the types of share capital. There are many types of share capital. First one is authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, then your unpaid capital, then reserve capital. So there are many types of share capital. Then we have seen the process of issuing shares. Okay, issuing shares to the public. Even we have seen the different method how we can issue shares. We can do by public issue, private issue, bonus to the shareholders, right issues, employee scheme. Okay, so there are many types of methods of issuing shares. In that we have seen the public issue. Public issue में हम लोगों ने देखा उसका प्रोसीजर, उसका स्टेप्स कैसे रहते हैं. फर्स्ट क्या करते हैं, कंपनी इशू करती है. इशू होने के बाद एप्लीकेशन लेती है. आफ्टर इनवाइटिंग एप्लीकेशन व्हाट इट डज, इट अलॉट्स द शेयर्स. ओके, शेयर अलॉटमेंट स्टार्ट करते हैं. आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर व्हाट कंपनी डज, कंपनी start asking for the subscription of the shares. Okay, after asking the subscription they start calling for the first call, second call and final call. And after that whoever whatever the जिनका allotment नहीं हुआ, what they do, they refund the amount. Okay, so this is the procedure of what is called issuing shares. Okay, then after that we have seen some basic journal entries. कौन से बेसिक जर्नल एंट्रीज रहते हैं वो हम लोगों ने देखा. आज हम लोग टुडे वी विल सी बेस्ड ऑन दैट जर्नल एंट्रीज हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स. Now here what it is given, Gajanan Limited issued 60,000 equity shares of rupees 10 each. Okay, 60,000 equity shares of rupees 10 each. Rupees 2 as application, rupees 3 as allotment, rupees 3 as first call, and rupees 2 as final call. All the shares were subscribed and all the amount due was received. मतलब सारे shares उन लोगों ने क्या किए, सब्सक्राइब किए. डेट इज 60,000 के 60,000 जो शेयर्स इशू किए थे वो सारे के सारे इशू हो गए, सब्सक्राइब हो गए. और उनका जो अमाउंट था, जैसे कि एप्लीकेशन का अमाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट, फर्स्ट कॉल का अमाउंट, फाइनल कॉल का अमाउंट, ये सारे अमाउंट उनको मिल गए. नाउ वी हैव टू चेक हमें एप्लीकेशन में कितना टोटल अमाउंट मिला, अलॉटमेंट में कितना टोटल अमाउंट मिला, दैट वी हैव टू सी. Okay, so let's check how much we have got. Now company has issued how many shares, 60,000 shares. Okay, here company has issued 60,000. How much? 10 rupees each. How much? 10 rupees each. Now here on application company has received how much? Rupees 2. Okay, on allotment company has received rupees 3. On
first call company has received rupees 3. Okay, on final call company has received rupees 2. So altogether 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, 8 plus 2 10. Okay, so total how much company got? Company got 10. That means it is total of this. Okay, so at this 10 rupees they have divided into application rupees 2, allotment rupees 3, first call rupees 3, final call rupees 2. So altogether 10. Now we have to check on application कितना मिले, allotment में कितना मिला, first call में कितना मिला और final call में कितना मिला. So let's check. So here एप्लीकेशन में हमें कितना मिला ना, एप्लीकेशन कितना हमारे 60,000 क्या है शेयर्स. ओके, ऑन 60,000 हमें एप्लीकेशन मनी कितना है रुपीज़ 2. सो इट कम्स टू 1,20,000. गॉट इट. नाउ विल चेक ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट कितना है हमारा 60,000 हमारे शेयर्स है और हमारा अलॉटमेंट मनी है रुपीज़ 3. सो इट कम्स टू 1,80,000. ओके, सो दिस वी हैव गॉट ऑन अलॉटमेंट. देन नेक्स्ट वी विल सी ऑन फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल कितना 60,000 multiplied by rupees 3. It comes to 1,80,000. Okay, and final call it is 60,000 multiplied by 2. It comes to 1,20,000. So this is the calculation which we have to do it first. That is हमें हर एक जो प्रोसेस है, अपना एप्लीकेशन है, हमारा अलॉटमेंट है, हमारा फर्स्ट कॉल है, हमारा फाइनल कॉल है, उसमें कितना कितना अमाउंट मिला, ये दिस वर्किंग नोट यू हैव टू डू इट फर्स्ट. ओके, सो लेट्स पास द जर्नल एंट्री. ओके, so here it is what the first journal entry will be related to amount of application. हमें application पे कितने मिले. As we have done the calculation 60,000 multiplied by 2 we got 1,20,000. so पहली journal entry होगी, जो हमें पैसे मिलेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, हमारे बैंक में जाएंगे. so here बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कहाँ से मिले, एप्लीकेशन. सो हियर एप्लीकेशन वर्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. दिस वर्ड एप्लीकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. दिस फ्रॉम दिस वी विल कम टू नो from where we have got the amount. So bank account debit to equity share application account. That is being narration क्या लिखेंगे, being equity share application money on 60,000 shares at rupees 2 per share received. That is 160,000 multiplied by 2, 1,20,000. Next, now whatever application money we have received, where we will transfer to share capital account. Okay, that is equity share. Now these are what your equity shares. So whatever amount is there we will transfer to equity share capital account. So here equity share application account rupees 1,20,000, this amount. Okay, on the top which we have received, that is 1,20,000, that we will transfer it to the equity share capital account. So here equity share application account debit to 1,20,000 to equity share capital account 1,20,000.
being application money on 60,000 equity shares at rupees 2 per share transfer to equity share capital account. So this is how you have to pass when the shares are up, when share application money is received. So basically on application there are two entries, which are the bank account debit to equity share application account, and the second one is equity share application account debit to equity share capital account. Okay, so this is the entry for application. Next is once the application journal entries are passed, next step is allotment. Okay, so on allotment, what entry should be passed? So it is equity share allotment account debit 1,80,000 to equity share capital account. Now whatever allotment money is there, what we will do, we will tell it that it is due. Once the application is received, we know that हमारा allotment money भी आने वाला है. तो allotment money आने से पहले हम लोग क्या बोलेंगे, उसको due बोलेंगे. Okay, so here equity share allotment account debit to equity share capital account, that is 1,80,000. So being allotment money on rupees 60,000 equity shares at rupees 3 due. Okay, मतलब ये जो हमारा अमाउंट था, okay, that amount what will happen here, we will see 60,000 multiplied by 3. We have done this before. Okay, so ये कैलकुलेशन करके हमें कितना मिला, 1,80,000 मिल गए. okay, so that we will do it over here. now ये जब हमें अलॉटमेंट मनी हमारा ड्यू है, तो जब हमें वो अलॉटमेंट मनी मिलता है तो हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 to equity share allotment account 1,80,000. being equity share allotment money on rupees 60,000 shares at rupees 3 received. okay, जब हमें रिसीव होता है तो हम लोग ये एंट्री पास करते हैं. so your application is done and allotment is done. now the next is first call. देखो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो ये कितने का था, ₹3 का था. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,80,000 to equity share capital account 1,80,000. so being equity share first call money on 60,000 shares on at rupees 3 due, मतलब ये हमें मिलने वाले हैं. और जब हमें मिलता है तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट to equity share first call account 1,80,000. being equity share first call money on 60,000 equity shares at rupees 3 receive. okay, पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्यू वाली एंट्री पास करेंगे, उसके बाद हम लोग जब हमें रिसीव होता है तो वो ये वाली एंट्री पास करेंगे. नेक्स्ट इज फाइनल कॉल, और हमारा लास्ट कौन रहेगा, फाइनल कॉल एट रुपीज़ 2. ओके, सो हियर इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,20,000. being final call money on 60,000 equity shares at rupees 2 पर शेयर ड्यू, मतलब हमें जब ड्यू होता है अमाउंट, हमें मिलने वाला है, तो हम लोग ये वाली एंट्री पास करेंगे. और जब हमें मिलता है तो बैंक की हम लोग एंट्री पास करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 to equity share second and final call account, being final call money on 60,000 equity shares at rupees 2 per share received. okay, तो ये वाले एंट्री हम लोग पास करेंगे. so here it is very simple. see, so here
फर्स्ट हमारी जो एंट्री रहती है, ओके, सो हियर इट इज़ व्हाट, फर्स्ट हमारी एंट्री रहेंगी इक्विटी शेयर कैपिटल के रिलेटेड, सेकेंड हमारी है बैंक रिलेटेड, हियर ऑल्सो सी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड नेक्स्ट इज बैंक। सो फर्स्ट जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन में फर्स्ट क्या आएगा, बैंक आएगा, उसके बाद एप्लीकेशन आएगा, बट रेस्ट अदर एंट्रीज जैसे कि हमारे ऑल अदर एंट्रीज है, ओके, जैसे कि फर्स्ट कॉल है या अलॉटमेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगा और उसके बाद क्या आएगा, बैंक आएगा। लेकिन एप्लीकेशन में पहले बैंक आता है, उसके बाद अलॉटमेंट आता है, क्योंकि एप्लीकेशन हमें पहले कहाँ से मिलते हैं, बैंक से मिलते हैं, उसके बाद ही ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसीलिए एप्लीकेशन के लिए पहली बैंक वाली एंट्री पास करना, उसके बाद कैपिटल की एंट्री पास करना, बट रेस्ट अदर जैसे कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, इनके लिए हम लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे, वी विल पास द फर्स्ट शेयर कैपिटल एंट्री एंड देन द बैंक एंट्री, ओके। So here basically for each of the process, that is application, allotment, first call, फाइनल कॉल के पहले हमारा कई बार सेकेंड कॉल भी हो सकता है, सो सेकेंड कॉल एंड देन फाइनल कॉल। तो हमारे हर एक प्रोसेस के लिए दो दो एंट्री पास करनी रहती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें प्रॉब्लम रीड करना है। आफ्टर रीडिंग द प्रॉब्लम वी हैव टू चेक नंबर ऑफ शेयर इशूड। कई बार हमें कैसा रहता है, टोटल अमाउंट दिया जाता है, लेकिन हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ओके। जब शेयर का अमाउंट इशू होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हमारे ईच शेयर का अमाउंट देख लेंगे। अभी इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ शेयर इश्यूड कितने थे, 60,000, और ईच शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपये था। देन वी हैव टू चेक फर्स्ट फॉर एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट कितना है। उसके बाद हम लोगों को चेक करना है अलॉटमेंट अमाउंट, अलॉटमेंट अमाउंट कितना है। देन वी हैव टू चेक द फर्स्ट कॉल अमाउंट, इफ़ देर इज सेकेंड कॉल चेक द सेकेंड कॉल अमाउंट एंड देन द फाइनल कॉल। सो इतने सारे हमें डिटेल्स चेक करने हैं। वंस वी गेट द डिटेल्स, हमें सब जब डिटेल्स मिलते हैं, हमें क्या करना है, पहला हमें जर्नल ड्रॉ करना है, ओके, वी हैव टू ड्रॉ अ जर्नल, ओके। जर्नल में क्या रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट रुपीज़, दैट इज डेबिट अमाउंट रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़, ऐसा हमारा जर्नल रहता है। वंस वी प्रिपेयर द जर्नल्स, आफ्टर प्रिपेयरिंग द जर्नल हमें क्या करना है, पहले बिफोर वी पास द जर्नल एंट्रीज वी हैव टू डू द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैसे करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे अलॉटमेंट कितना अमाउंट है। अलॉट जैसे कि मैंने इस प्रॉब्लम में आप लोगों को सिखाया था कि कैसे हम लोगों को वर्किंग नोट करना है। सो वर्किंग नोट कैसे करेंगे, पहले एप्लीकेशन मनी का अमाउंट निकालोगे आप लोग, जैसे कि मैंने निकाला 60,000 मल्टीप्लाई बाय ₹2, हाउ मच इट कम्स, 1,20,000। सो ऐसे करके हमें अमाउंट निकालने। वंस वी कलेक्ट ऑल द अमाउंट, जैसे कि एप्लीकेशन में मैंने अमाउंट निकाला, उसके बाद हमें अलॉटमेंट पे निकालना है। देन वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट फर्स्ट कॉल, अगर सेकेंड कॉल है तो सेकेंड कॉल का अमाउंट निकालो एंड देन द फाइनल कॉल। बिफोर दैट वी हैव टू चेक कि जो जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में अमाउंट है इज़ इक्वल टू द पर शेयर प्राइस, ओके। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को 3 + 2, 2 + 3, 3 + 2, ऐसे करके टोटल कितना आया, 10 आया। ये टोटल 10 किससे मैच हो गया, हमारे पर शेयर अमाउंट से मैच हो गया। तो ही हमें फाइंड पता चलता है कि ये सारे शेयर्स का अमाउंट हमें मिल गया, नहीं तो वी हैव टू चेक क्यों नहीं मिला। तो उसके आगे के प्रॉब्लम में आप लोग पढ़ोगे कि क्या रहता है इसमें, ओके। सो यार
this we have to find the details. After finding the details we have to pass the journal entries. Journal entries कैसे पास करेंगे हम लोग, we will check ओके। जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट थिंग क्या आएगा, एप्लीकेशन आएंगे। हमें एप्लीकेशन कहाँ पे आएंगे, हमारे बैंक में आएंगे। सो बैंक वाली एंट्री पास करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब हमें एप्लीकेशन का अमाउंट मिल जाता है देन वी हैव टू डू व्हाट, एप्लीकेशन अमाउंट जब हमें मिलता है तो हम लोगों को क्या करना है, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। शेयर कैपिटल में कैसे ट्रांसफ़र करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ऐसे करके उसकी एंट्री हो गई, दैट इज़ एप्लीकेशन की। नेक्स्ट कम्स द अलॉटमेंट। जब हमें एप्लीकेशन मिल जाते हैं हमें पता चलता है कि हमें अलॉटमेंट के मनी भी मिलने वाले हैं, तो यार फर्स्ट क्या होगा, अलॉटमेंट का हम लोगों को एंट्री पास करनी है, दैट इज़ शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओके। उसके बाद जब हमें पैसे मिल जाते हैं तो हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, योर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये वाली हो गई हमारी दोनों एंट्री अलॉटमेंट की। देन कम्स द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में हमें पता रहता है कि हमें फर्स्ट कॉल को इतना अमाउंट मिलना चाहिए। सो योर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओके। देन आफ्टर वी ये हमें पता चलता है कि हमें ये ड्यू है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, योर हम लोग बैंक का एंट्री पास करेंगे जब हमें पैसे मिल जाएंगे। तो बैंक की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ओके। देन वी विल चेक द इक्विटी शेयर, ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। आफ्टर वी पास द फर्स्ट कॉल एंट्री वी हैव टू पास द फाइनल कॉल एंट्री, दैट इज इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओके। देन वंस हमें पता चला कि ये ड्यू है, ड्यू होने के बाद व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू सी द बैंक अकाउंट ओके। हम लोगों को बैंक में इसको ट्रांसफ़र करना है, तो वो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ओके। तो ऐसे करके हमें ये एंट्रीज पास करनी है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू पास आवर एंट्रीज ओके। सो योर वंस वी पास द एंट्रीज हमारा ये वाला प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। सो योर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम यू हैव कम टू नो कि हमारे ईच प्रोसेस के लिए हमें दो दो एंट्रीज पास करनी है ओके। सो योर दिस इज़ अ सिंपल एंड अ बेसिक प्रॉब्लम जस्ट फॉर योर नॉलेज। ऐसा वाला प्रॉब्लम ही आएगा लेकिन थोड़े एड ऑन्स करके आप लोगों को आएंगे, जैसे कि हम लोग फीचर्स में देंगे। ऐसा ही और एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अभी का जो लास्ट हमारा प्रॉब्लम था वो था इक्विटी शेयर के ऊपर, ये वाला जो प्रॉब्लम है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर है। चेक हियर, Honesty Limited issued 20,000 preference shares of ₹10 each payable on payable 10 रुपये 20,000 शेयर्स है, इशू कितने की है 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ओके। उसमें क्या किया, ₹4 एप्लीकेशन के ऊपर है, ₹2 अलॉटमेंट के ऊपर है, ₹4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर है। तो टोटल कितना हुआ, 4 + 2 6, 6 + 4 10 ओके। सो इट इज़ करेक्ट। शेयर्स व फुल्ली सब्सक्राइब, यहाँ के भी क्या बोल रहे हैं कि सारा शेयर्स है वो सब्सक्राइब हुए हैं और हमें अमाउंट जो है वो भी मिल गए। सो हियर वी हैव टू फर्स्ट क्या करना है, हमें सारे डिटेल्स हमें चेक करने हैं। तो डिटेल हम लोग चेक किए, हम लोगों को जर्नल प्रिपेयर करके रखना है। वी हैव टू डू द वर्किंग नोट फर्स्ट, दैट इज 20,000 multiplied by 4 on application, how much you get 80,000. then we have to check on allotment, allotment में कितना है 20,000 multiplied by 2,
how much? 40,000. So here it is on allotment. First and final call पे कितना है? 20,000 multiplied by 4, again 80,000. So here this working note you have to prepare it very nicely. यहाँ पे पूरे details डाल के हमें working note prepare करना है. Then we have to pass the entries. First entry किसकी होगी? एप्लीकेशन. और यहाँ पे एप्लीकेशन की पहली क्या होगी? फर्स्ट बैंक की होगी, उसके बाद शेयर कैपिटल की होगी. सो योर बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू preference share application account 80,000. Okay, so here being application money on 20,000 preference shares at rupees 4 per share received. Okay, once we receive the amount we will transfer it to preference share capital account. Okay, so preference share application account debit 80,000 to preference share capital account, that is 80,000. Being application money on 20,000 preference shares at rupees 4 per share transferred to preference share capital account. Okay, once the application is done we have to check the allotment. allotment में हम लोगों को पता चलता है कि हमें इतना amount मिलने वाला है. So what we will do, we will take it first due entry and then we will take it the receive entry. So यहाँ पे preference share allotment account debit 40,000 to preference share capital account, that is 40,000. So being allotment money on 20,000 preference shares at rupees 2 per share due. Okay, that is 40,000. Then we will transfer it to the bank entry because हम लोगों को वो जब रिसीव होता है तो हमें बैंक एंट्री पास करनी है. सो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू preference shares allotment account 40,000. being allotment money on 20,000 preference shares at rupees 2 per share received. Okay, so ये हो गई हमारी allotment की एंट्री. अभी लास्ट बच गई है वो है फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री. सो इसकी एंट्री है preference share first and final call account debit 80,000 to preference share capital account 80,000. Here being first and final call money on 20,000 preference shares at rupees 4 per share due. Okay, then afterwards once we receive the amount, what entry we will pass? Bank account debit 80,000 to preference share first and final call account 80,000. Okay, so being first and final call money on 20,000 equity shares at rupees 4 per share received. Okay, so here from these two problem आप लोगों को अंदाज़ा आया होगा कि हमें कितनी एंट्रीज पास करनी है. For each and every process we have to pass 2 entries. Okay, सिर्फ एप्लीकेशन में बैंक वाली पहले आएगी, उसके बाद शेयर कैपिटल आएगी. रेस्ट ऑल द प्रोसेस दैट इज़ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, इसमें क्या होगा? हमारी कैपिटल की एंट्री पहली होगी, फिर उसके बाद बैंक की एंट्री होगी. ओके, सो टुमारो वी विल सी वन अनदर प्रॉब्लम. ओके, टिल देन solve the textbook problems.